پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی۔ ایڈیشنل مستقل مندوب عاصم افتخار کی پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت۔ پرامن اور محفوظ دنیا کے لیے اجتماعی کوششوں میں کردار ادا کرنے کا عزم۔ کہا پاکستان مظلوم اقوام کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ ہم پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہوا۔ پاکستان کو جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک میں سے 182 ووٹ ملے تھے۔ پاکستان 2 سال تک اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ دیگر غیر مستقل ارکان ڈنمارک، یونان، پناما اور صومالیہ کے پرچم بھی لگائے گئے۔ مستقل مندوب منیب اکرم نے کہا کہ سلامتی کونسل میں دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ بلائی علاقوں میں بارش اور برف باری۔ مظفر آباد میں بادل برس پڑے۔ وادی نیلم بیپا میں برف باری۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، بادل خوب برسے۔ خیبر پختونخوا کے بلائی علاقوں میں برف باری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گلگت بلتستان میں بھی غضب کی سردی، پارہ نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کئی مقامات سے بند۔ دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول بھی متاثر۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایک کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سول اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ خوشحالی اور ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ ضروری ہے کہ ہم یکسو ہو کر پاکستان کو معاشی ٹائگر بنائیں۔ بدقسمتی سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ دہشت گردی کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دہشت گردی کا سر کچلنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ امن و امان کا معاملہ چیلنج بن چکا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے۔ پارہ چنار امن معاہدہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام شریک۔ وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی شرکت۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ آرمی چیف نے معاشی استحکام کے لیے حکومت کے اقدامات کے لیے پاک فوج کی حمایت کے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ایپیکس کمیٹی کا زراعت، IT، مائننگ، سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ۔ اقتصادی ترقی کے لیے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ایپیکس کمیٹی کا ملک بھر میں اسپیشل اکنامک زون کا جال بچھانے پر زور۔ چاروں صوبوں میں اسپیشل اکنامک زونز قائم ہونے چاہئیں۔ فارم کا اکنامک زون سے متعلق قوانین کو آسان بنانے پر زور۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل۔ تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھ دیے۔ پہلا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ دوسرا مطالبہ بانی PTI سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے۔ PTI نے سیاسی قیدیوں پر مزید کیسز قائم نہ کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ جو کیسز موجود ہیں ان پر عدالتی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بانی PTI سمیت تمام سیاسی قیدیوں پر مزید نئے کیسز قائم نہ کیے جائیں۔ PTI میں بیک ڈور والا نہیں، کھلی کتاب ہوں۔ بیٹھ کر جمہوری طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ جب مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے تو لگتا ہے کہ وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا مذاکرات بانی کے حکم پر شروع ہوئے۔ مذاکرات کیسے کرنے ہیں بانی ہی فیصلہ کریں گے۔ اگر 9 مئی کے ملزمان کو چھوڑا گیا ہے تو اچھی بات ہے۔ کسی کو سزا دینا اور گولیاں مارنا حل نہیں ہوتا۔ کرم کے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا۔ بانی
पी टी आई बनी गाला मुंतकिल करने पर सियासत कर रही है। हुकूमत की जानिब से बानी पी टी आई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी मौलाना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा ये बानी पी टी आई का सियासी बयान है। बनी गाला मुंतकिल करने की कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। बानी पी टी आई के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। हुकूमत के पास रिहा करने का इख्तियार ही नहीं। बानी पी टी आई अदालतों से ही रिहा हो सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलाफ पी टी आई शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पी टी आई पेशकश से मुतालिक बात दुरुस्त कर रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बानी पी टी आई ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। बानी से मुशावरत करना हमारा हक है। बानी पी टी आई से मुलाकात कराना कोई गैर कानूनी काम नहीं। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने का खदशा। इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल हो सकते हैं। A1 केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट से जोड़ती है। A1 केबल 7 ज़ेर समंदर केबल में से एक है। सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। तर्जमान PTA। इसराइल की गज़ा में वहशियाना बमबारी जारी। हमलों में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अलमवासी में महफूज करार दिए गए इलाके पर बमबारी से 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का खान यूनिस में गज़ा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ़द को इख्तियार दे दिया। इसराइल की मुज़ाकराती टीम में फ़ौजी और खुफिया एजेंसीज़ के हुकाम शामिल। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात क़तर में होंगे। और टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेज़बान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले मुजरिमान की रहम की पिटीशन सामने आ गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान को रहम की पिटीशन मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। मुजरिमान की रिहाई दायर करदा रहम की पिटीशन पर कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गई। सनहा नौमाई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशन दायर की। मुजरिमान ने अपनी रहम की पिटीशन में नौमाई के वाक़यात में मुलव्वस होने का इतराफ़ किया। 19 मुजरिमान की पिटीशन खालिस्तन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर की गई। सजाओं की मुआफ़ी शफाफ कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। कुरम में अमन मुआहिदा खुश आइंद है। मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सूबाई हुकूमत कुरम के मुतासरीन की मदद करे। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के शहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करे। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने ना होते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में आर्मी ताकतों को छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। पड़ोसी मुल्क में बदमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नर हाउस में जल्द बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मुनक्किद होगा। बल्दियाती नुमाइंदे सवाल कर रहे हैं कि डंडे क्यों बरसाए। सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने का खदशा। इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल हो सकते हैं। A1 केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट से जोड़ती है। A1 केबल 7 ज़ेर समंदर केबल में से एक है। सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। तर्जमान PTA। फारूकी कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा फातिमा के जवाबात पर बरहम बोली। बहुत मायूस हूँ, 4 इजलास हो चुके, इंटरनेट के मामले का कोई हल नहीं निकला। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत? मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हुआ। क्या सभी झूठ बोल रहे हैं? शहज़ादा फातिमा ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी होती है, जहाँ ज़रूरत है हमें वहाँ सर्विलेंस करनी पड़ती है। इंटरनेट के इशूज़ थे, अब नहीं है। चेयरमैन PTA ने कहा कि सबमरीन केबल पाकिस्तान में लाना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। पिछले 10 साल में एक केबल नहीं आए। 31,000 से ज़ायद IP रजिस्टर हो चुके हैं। इंटरनेट स्पीड में हम
97वें नंबर पर हैं। हम स्पेक्ट्रम में पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं। कोई ये साबित करे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो कल से दफ्तर आना छोड़ दूंगा। लंदन में सारा शरीफ के कातिल वालिद पर जेल में हमला। 2 कैदियों ने इरफान शरीफ पर घात लगाकर हमला किया। हमला आवलों ने कैंक के ढक्कन से सारा शरीफ के वालिद की गर्दन और चेहरे को जख्मी किया। गार्ड्स ने फौरी पहुंचकर इरफान शरीफ को कैदियों के तशद्दुद से बचाया। सारा शरीफ के कातिल वालिद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या साउथ लंदन के बहमाश जेल में पेश आया। इरफान शरीफ को सारा शरीफ के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 हफ्ते पहले ही 40 साल की सजा सुनाई गई। इसराइल की गज़ा में वहशियाना बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अल-मवासी में महफूज करार दिए गए इलाके पर बमबारी से 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का खान यूनिस में गज़ा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,581 तक पहुँच गई। शदीद सर्दी और सहूलतों के फुकदान के बायस एक और नामौलूद ज़िंदगी की बाजी हार गया। गज़ा में शदीद सर्दी के बायस जमघर बच्चों की तादाद 8 हो गई। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की साइट्स प्रति हमला। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ़द को इख्तियार दे दिया। इसराइल की मुज़ाकराती टीम में फ़ौजी और खुफिया एजेंसीज़ के हुकाम शामिल। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात कतर में होंगे। और टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। कप्तान शान मसूद का कहना है कि फाइनल 11 का अभी फैसला नहीं हुआ। पिच को दोबारा देखेंगे फिर तय करेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम में अभी भी 4 फास्ट बॉलर्स हैं। उनके पास अच्छे ऑलराउंडर हैं। आमिर जमाल टेस्ट टीम में हमारा अहम प्लेयर है। नंबर 8 पर उनका अहम रोल है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेज़बान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।